जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मल्टीलिंगुअल जूम सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरु जी महाराज आपको बहुत शुक्राना ये जाप और पाठ की घड़ियां बख्शने का। सब आपको समर्पित प्रभु। बेअंत शुक्राना। सिंगर जी, आज गुरु जी की कृपा से विद हिज ग्रेस and Kripa, today we have again summed up together to continue this beautiful journey from Light of Divinity. And today we will be continuing from page 101 until 106 with the chapter The Divine Healer Treats the Doctors of Dr. Brigadier Sani Uncle. And we welcome Sunita Auntie to please unmute herself and please breathe the beautiful journey, and welcome Joshi Auntie to accompany her on this beautiful journey. Shukrana Guruji. Over to you, Auntie. Jai Guruji. Sunita Auntie, you can unmute yourself. जय गुरु जी। Jai Guruji Auntie. Namaste Auntie. जय गुरु जी। जय गुरु जी। वेलकम वेलकम सुनीता। आई थिंक शी इज नॉट देयर। आई नहीं अभी तक। आई डोंट थिंक शी राइट, बट मैं स्वागत करती हूँ सुनीता का आज के इस पाठन में। ब्रिगेडियर सैनी के द्वारा अपनी जर्नी जो गुरु जी के साथ उन्होंने अनुभव की है और जो उनके साथ जो भी वाकयात हुए हैं वो उन्होंने इस मैं अगर सुनीता ऑनलाइन हो चुकी हैं तो मैं आग्रह करूंगी कि आप आए और आज का पाठ भी शुरू करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू सुनीता। जय गुरु जी। आवाज आ रही है? Yes, Auntie, बिल्कुल आ रही है। आप प्लीज, yes, Auntie, please you can continue, start the reading and let's progress the session. जय गुरु जी Auntie. वेलकम सुनीता, शुरू करो। हाँ जी। Even the best of human beings are capable of nothing more than great empathy when they see someone in distress. Mahapurush like Guruji can, however, take on the sufferings of others upon themselves to lessen their pain and make their faith steady. Dr. Brigadier Saini experience with Guruji bear the statement out the doctor, a specialist in medicine, is not only a first-hand witness to the divine healing power, but also its beneficiary. Spooning out spondylitis. Dr. Saini was in Jalandhar and his house was near Guruji temple. But he could not have darshan of Mahapurush initially. When he did, it was as if blessings had unendingly started flowing into his life. The doctor's wife, a devotee of Guruji, had cervical spondylitis, which led to severe neck pain. She was being treated with physiotherapy and analgesics. This was towards the end of 1996, and Guruji was in Panchkula, a township adjacent to Chandigarh. One day, the doctor was with Guruji and the Sangat. Dr. Saini's responsibility was to take a round of the ICU in the evening, and he asked Guruji whether he could go to the hospital. Guruji reassured him that all his patients were well, but allowed him to go. When the doctor returned, Guruji said he had cured his wife.
The doctor was told that Guruji had applied a spoon. The doctor called it Guruji's all-in-one gadget. His X-ray machine, echocardiograph, ultrasound, and CT scanner. To the back of his devotee's neck, relief was instantaneous, and no other treatment was ever required. मैं ये इंटरप्ट करूंगी आपको सुनीता, हाँ आपको इस जी, फैक्ट कुछ भी हाँ या हाँ आपको जी, अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। ठीक है जी, जरूर। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड बरगेटी सैनी, हम लोग गुरुजी से 1996 में गुरुजी से जुड़े। और मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे वहां पर कमांड हॉस्पिटल में, और वहां से हम हर रोज जाते थे। और गुरुजी की कृपा समझ लो या गुरुजी का प्यार समझ लो कि उन्होंने हमें अपने चरणों में रखा, और हम लोग ऑलमोस्ट डेली जाते, हर रोज जाते थे। उस टाइम पे गुरुजी जनरल आहूजा अंकल के घर में रहते थे, और एक दिन वहां बैठे हुए दर्शन कर रहे थे गुरुजी के, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी मैं जाके हॉस्पिटल राउंड लगाया हूँ। तो गुरुजी कहते डॉक्टर साहब की कोई लोड़ नहीं है, सब ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते कि जाके राउंड करया। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੋਲਾ हुआ था गुरुजी ਨੂੰ कि मेरे वाइफ ਨੂੰ स्पॉन्डिलाइटिस ਦੀ काफी पेन ਹੁੰਦੀ है और काफी ट्रीटमेंट करता है, बट अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, और जिसले मेरे हस्बैंड चले गए राउंड ਲਈ, तो गुरुजी ने कहा कि मनु कहते चल आ मेरे कमरे ਚ। ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਗਈ, और गुरुजी ने अपने बेड ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ और एक चम्मच लिया, और चम्मच ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਸਟ ਟਵਿਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਥੈਂक्स ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬੋਲਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। और जिसले मेरे हस्बैंड आए तो गुरुजी कहते कि डॉक्टर साहब मैं आंटी नु ठीक कर देता। तो मेरे हस्बैंड ने भी थैंक्स किया और गुरुजी दे थे बैठ के। और एक्चुअली मैं एक गल कहांगी कि मैं कदी सत्संग कीता नहीं। एक बारी गुरुजी ने दरबार च लेटली सारे जने कुछ लोग बैठे दे से गुरुजी कहते चल उठ सत्संग कर। और उदों मेरी बिटिया दी भाभी दे बेटी ब्लैस कीती सी गुरु जी ने। तो गुरु जी कहंदे तू दसिया नहीं कि ओरे बेटी हुई है। मैं कहा सॉरी गुरु जी मैं भूल गई। कहंदे चल उठ के फिर सत्संग कर। और मैं एकदम कंब रही सी, अंदरों आवाज नहीं निकल रही सी, पर एनी हो पूरा सत्संग सुनाया। गुरु जी कहंदे चल बह जा तू, तेरे तो नहीं सत्संग होता। तो पर फिर भी मैं कोशिश करांगी, अगर कोई गलती हो जाए कुछ तो मैं आप सबसे माफी मांगूंगी। तो उस वक्त मैं पढ़ती हैं गुरुजी प्लेस डॉक्टर, हाँ जी, गुरुजी प्लेस डॉक्टर गुड हार्ट। A year later it was doctor himself who was treated. By then Guruji had moved to Chandigarh and the doctor had gone for darshan. There one day Guruji said that the sole of his foot was paining. The doctor examined it and found that a particular point was tender and promised to bring an analgesic cream the day after Guruji refused the offer. Dr. Saini, who was by then a senior advisor in the medicine department, told Guruji that the army hospital had recently acquired a new laser therapy machine and requested that he undergo treatment through it. After some time, Guruji came to the doctor and asked that the laser treatment be given to him for 3 days. The doctor responded that 10 days would help more. And this assertion, Guruji led out what he was up to, telling the doctor that he was really visiting the hospital for the doctor's welfare. What Guruji meant was borne out 2 weeks later.
The doctor had chest pain and ECG showed heart changes. Dr. Saini summoned the hospital cardiologist, who advised him to spend time in the ICU as the heart changes foreshadows a heart attack. The worried doctor phoned up Guruji from the hospital. Guruji talked to Mr. Saini, prescribing a remedy. When Dr. Saini came out of the ICU, he went to Guruji inside his room. The master laid him down on the carpet and passed a clean stainless spoon all over his body. Thereafter, the doctor's heart was investigated at the Army Search and Referral Hospital at New Delhi. Battery of diagnostic tests, the treadmill, echocardiograph, the thallium scan reported that his heart was normal. The thallium scan reported that his heart was normal. The yearly clinical investigations the Army compulsorily carries out showed he was symptoms-free and he never required more treatment. The divine healer had thus treated the doctor by inverting the doctor-patient relationship. Guruji had become his patient for 3 days to take laser treatment and had done away with whatever was efficienting his devotee. A blocked artery opens. ਇਸ Thus- ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ ਆਂਟੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀ ਮੰਡੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ गेस्ट आए हुए सी मेरी नीस फैमिली आए हुए सी और एकदम से डॉक्टर साहब बड़े चुप सी मैंने कहा क्या हुआ कहते पता नहीं मेरे पेन हो रही है तो मैं हॉस्पिटल जाके टेस्ट कराना है और मैंने बोला नहीं यार तुम अकेले नहीं जाओगे और मैं इनके साथ ही हॉस्पिटल गई और इन्होंने अपना इनका ECG वगैरह की थी और चेंजेस आए ਔਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਡਲੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कमांडेंट ने कहते नहीं मैम आप घर जाओ तो हम लुक आफ्टर करेंगे और मैं घर चली गई और उस तो बाद डॉक्टर साहब ने गुरु जी नाल फोन से गल की होनी है और दसिया कि ऐसा गुरु जी ये तो गड़बड़ हो गई है तो मेरा पेन ऐदा हो गई है गुरु जी कहते आंटी किथे है तो गुरु जी कहते वो तो घर चली गई है और गुरु जी का फोन आता है उत्थे घर आता है तो मैं चुकिया मैं गुरु जी नूं प्रणाम किया और गुरु जी कहते कि सजल किथे है मेरा बड़ा बेटा मैं क्या गुरु जी घर ही है कहते ओनू लैके तो उन्होंने कुछ उन्होंने उपाय दसिया जाके तू करा के आ मैं क्या जी गुरु जी और करा के चले गए और बेटे ने वो कर दिता सब उस तो बाद इन्हां नूं 2 दिन बाद इन्हां नूं वापस भेज दिता और काफी मोराल इन्हां दा डाउन हो गया कि मैं ड्रिंक नहीं करता कोई स्मोकिंग नहीं करता इन्नी मैं एक्सरसाइज वगैरह करता फिर ऐसा क्यों हो गया और मेरी नीस मन लैके जाती रही गुरु जी को ये नहीं गए काफी दिन नहीं गए काफी उदास दे रहे तो गुरु जी कहते डॉक्टर कितने हो क्यों नहीं आता मैं क्या गुरु जी बड़े उदास रहते हैं कहते उन्होंने लैके आ उनके गुरु जी ने बुलाया सॉरी और मैं आके क्या कि गुरु जी ने कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਚਮਚ ਲਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ 99 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਇਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸਲੇ ਨੈਕਸਟ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ
कल फिर गुरुओं ने PMT भी कर दिता। तो एकदम एकदम ये गुरु जी चरणा च पै गए। गुरु जी हाँ थोड़ी बहुत किरपा हुई है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਲੌਗ जय हार्टी ਹਾਂਜੀ नेक्स्ट करूं मैं जी। A blocked हाँ RT जी, open. The Sadguru grace extends to even those who are not his devotees. It is as if everyone's suffering is his own. Take the case of Colonel Madan, another specialist in medicine who worked with Dr. Saini. Colonel Madan had been a heart patient for a long time. He had already had a bypass done after a coronary artery had been blocked, but Colonel Madan still experienced chest pain and breathlessness, which was threatening to incapacitate him from the performance of his medical duties. It was also found that the bypass channel too was blocked. That was grave news. Brigadier Saini and General Ahuja, another of Guruji's devotees, asked Colonel Madan to see Guruji's refuse. And so Colonel Madan went to Guruji. Guruji gave him his blessings through a copper tumbler and also advised him to wear a necklace with a pendant, blessed by Guruji in the shape of an Om. Colonel Madan's health started improving immediately after a few months when an angiography was done. The results were astonishing. The original or native artery, which the doctors had bypassed, had opened. Dr. Saini met Colonel Madan later in 2003 when he had come to visit Guruji in Empire Estate. In Guruji's spiritual court, the doctor related the story of his miraculous cure to everybody in sincere thanksgiving to the divine healer who saved him. हाँ जी, दिवाली भी हाँ हाँ जी, ये डॉक्टर साहब के साथ ही इनके कुलीग थे और उन्होंने काफी प्रॉब्लम रहंदी सी। हमेशा कहते सी क्योंकि ये बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट आके कहना कि ब्रिगेडियर सैनी मेरे तो वो तब कर्नल थे, कर्नल सैनी मेरे तो काम नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਹੂਜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਦਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਕਰਨਲ ਮਦਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। तो ये कहते कि मदन तेरे तो गुरु जी ने बहुत कल्याण किया बहुत। कहता जी कमाल कर दिता गुरु जी ने मेरी सारी आर्टरी खोल दी है और हुन कोई पेन नहीं हुंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस दैट डे ही बिकेम परफेक्टली ऑल राइट। उस तो बाद गुरु जी दी ब्लेसिंग्स उन्हां दे नाल हमेशा। And a leaking heart valve normalized. Dr. Saini's wife had suffered rheumatic fever in childhood and hidden from her and from everybody else, her left off mitral valve had borne the brunt of the fever and was leaking. It was her doctor husband who first suspected her problem. Ever since she had an echocardiography done once every 2 years. In 2003, when Dr. Saini was at the Army Research and Referral Hospital in New Delhi as a consultant, his wife complained of breathlessness while walking. The echocardiograph showed a severe degree of leakage, or what is medically known as mitral
regurgitations. She was advised to have the heart valve replaced. In the intervening period, she was given medicines to control the symptoms and was told that the drug prescribed Rampril could lead to coughing in certain cases. One day the couple was with Guruji when the lady devotee mentioned that she would not take the medicine as it was making her cough. Guruji simply said, okay. As they were leaving the Sadguru room, he said, I bless your heart. He further advised Dr. Saini to get his wife examined from AIIMS, head of cardiology Dr. Talwar, to remove any doubt. After Dr. Saini had explained his wife's condition to Dr. Talwar, the doctor took her to examine room and spent quite some time in the investigation. He came out of the room surprised. He said that since Dr. Saini had told him of the condition his wife was suffering from, he had taken his time to check for a damaged left valve. But, said the famous doctor, he had found nothing wrong. Guruji divine blessings on his devotee's heart had worked wonder. Dr. Saini says medical, since cannot even dream of going what Guruji had accomplished with his sparse words. Sorry, word थोड़े. हाँ जी. Hello. 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 हेलो, हाँ जी आंटी, आपका ये सत्संग तो बहुत बारी से सुनाते थे सैनी अंकल, आप भी अपने मुंह से जरूर बात को सुनाओ। ठीक है जी. एक्चुअली बचपन से मनु नाम भूल गई, प्रॉब्लम हुई थी, मैं प्रॉब्लम भूल गई, मैं उधर नाम भूल गई. तो एनी हाउ, तो मेरे को उस टाइम पे, दैट टाइम आई वाज जस्ट 6-7 years old, रोमेटिक फीवर, आई हैड रोमेटिक फीवर. और उस टाइम पे सामने हमारे एक डॉक्टर थे जो कि काफी हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे को मेडिसिन देनी शुरू की. लेकिन उस नाल मेरे शायद हार्ट दे उत्ते इफेक्ट आया जो कि पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ. और जब शादी हुई मेरी तो आई ब्लेस्ड विद माय सन. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे हस्बैंड ने डायग्नोज किया और ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਕਦੀ ਰੋਮੈਟਿਕ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ. और मेरी मम्मी ने बोला हुआ था कि हस्बैंड कुछ भी पूछते ना तो दस देनी होंगे. और मैंने कहा नहीं, मनु नहीं पता जी, डैडी को पता होगा. वो मेरे फादर के पास जाते ने, कहते डैडी कदी एनु बचपन च रोमैटिक फीवर होया सी. तो डैडी बोलते हाँ होया सीगा. डैडी ने पूछा कि क्यों, की गल, कहते नहीं थोड़ा कुछ अरे हार्ट च थोड़ा प्रॉब्लम है. सो बीवियां थोड़ी छिपा लेंदी है ना, पापा लोग सच बोल दे. नहीं वैसे तो चाहे नाम ही मैं छुपाती, लेकिन माँ ने इंस्ट्रक्शन दी हो इसीलिए इस करके मैं चुप रही. और उस तो बाद इन्होंने काफी मेरी केयर करनी शुरू कर दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी. इसीलिए फिर मेरा सिजेरियन हुआ बड़ा बेटा. और उस तो फिर एवरी 2 years मेरे इकोकार्डियोग्राफी होंदी सीगी. और कोई मेडिसिन वगैरह नहीं कुछ लाने की लोड़ पई. और एक इंजेक्शन देंदे सी जो कि 1 साल तो बाद या 2 साल बाद देंदे सी. उस तो बाद मैं ठीक रही. और जब गुरुजी एम्पायर स्टेट सी तो एक दिन वॉक कर रहे सी ਅਸੀਂ दोनों दरबार जाने तो पहले. और एकदम मनु ब्रेथलेसनेस हो जाती है. तो मैंने क्या मनु आज बड़ी ब्रेथलेसनेस हो रही है. तो कहते कोई नहीं, कल तेरी इकोकार्डियोग्राफी कराने है तो पता लग जाएगा. तो जिसले कराई तो फिर डॉक्टर ने ऐसा दसिया कि थोड़ा लीकेज हो रही है. तो मैं क्या फिर अदा की करोगे, कहते तुहानू एक दवाई हैगी है रैमप्रिल, तो ਇਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. मैं चुप रही. शाम ਨੂੰ जिसले गए गुरु जी को तो गुरु जी सेवा ले रहे थे. गुरु जी सेवा करते हुए मैं क्या, गुरु जी आज मनु इन्होंने एक दवाई दी है, पता नहीं की रैमप्रिल की ना कह रहे, मैं नहीं खानी. कहते क्यों नहीं खानी तू. मैं क्या नहीं गुरु जी कहते और ना कईयां ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ हो जाती है तो मैंने नहीं खानी.
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਪਤਾ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਹਾਰਟ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਬੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ और ਇਹਨਾਂ ਨੇ डॉक्टर ਨੂੰ बताया कि ऐसा है। तो डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन करना शुरू करता और देख रहे हैं अपना स्टेथोस्कोप ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਰਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਅੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾ ਦਿਓ तो और थोड़ा श्योर हो जाएंगे। वो कहते डॉक्टर साहब वो क्यों करानी है, सब ठीक है। फिर भी उन्होंने कहते चलो करवा लो। करवाई तो कहते माइनर कुछ हो सकता है पर अदरवाइज परफेक्टली ऑलराइट। और वो भी कराया और सब ठीक आया। और बस गुरु जी दी ब्लेसिंग्स, गुरु जी का प्यार, गुरु जी का प्यार, गुरु जी की ब्लेसिंग ही सबसे बड़ी है। देखो आप वो तो अपना एक नजर से ही ठीक कर देते, चमचे दिखाने के लिए एक ही मन में दुख रहा है कि यही सोचते सीगे कि ਅਸੀਂ चले जाएंगे, बच्चों ਨੂੰ गुरु जी संभालेंगे, पर पता नहीं क्यों गुरु जी हम सबको इतने जल्दी छोड़ के चले गए। है तो गुरु जी आज भी है, विराजमान है, पर वो जो जिस रूप च गुरु जी ਨੂੰ, हाँ बिल्कुल, वो तो हम मिस करते ही हैं। वो दर्शन बहुत मिस करते हैं। कई बार लगता है कि वो हमारे गोल्डन डेज थे जो कि ਅਸੀਂ आज मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। तो गुरु जी ने जो सोचा उन्होंने वही करना था। कहते होंगे सी मैं अपनी फाइल आपे लिख के ले आना है और आपे बंद करके ले जाना है। हाँ तो जी, गुरु जी ने वही किया। हाँ जी, हाँ जी। चलो नेक्स्ट है medical technicians are blessed. One day in 1998, Guruji informed Dr. Saini that he would be coming in the evening to the military hospital at Chandi Mandir for a blood checkup and ultrasonography. The blood test was done. The technician, an old hand, was surprised. He found that even on repeated examination of the blood sample for blood sugar, the reading was coming to 8 milligram to 15 milligram. The technician knew this was way below the normal limits, and at these levels, a man could not survive. He told Dr. Sani that this patient could not be from Earth. Guruji blessed the technician and told him that he would be promoted as the subsequently was. A radiologist from Bhatinda, Major Sinha, was a similar beneficiary of Guruji's grace. The radiologist was on temporary duty at Chandi Mandir. When Guruji came in for a ultrasound, Major Sinha did the ultrasound of the abdomen and concluded it was normal. Guruji blessed him, saying he would have 2 sons and would get promoted to the rank of Major General. An uncomprehending Major told Guruji he had 1 son and that was sufficient. In 2004, Dr. Saini met Major Sinha in the Research and Referral Hospital, New Delhi. Major Singh was now Lieutenant Colonel Sinha and was training in nuclear medicine at the Army Hospital. Dr. Saini asked him if he remembered Guruji's blessings. His colleague did. In fact, he told Dr. Saini that at that time, Guruji had made his remark. His wife had been told by a gynecologist that she could not have another child, but she had thanks to Guruji's blessings. हाँ जी,
हाँ जी। ये एक्चुअली अच्छा, ये जब हुआ सुनीता, है, हाँ जी, एक्चुअली इस वाले इसके बाद आपने, आई थिंक यू हैव मिस्ड टू पैराग्राफ्स, टू मोर दिस थिंग, यू नो। अच्छा अच्छा, सॉरी, कोई नहीं, मैं करता वो हाँ, बात कोई नहीं, करना। उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है। सॉरी, हाँ, कहिए। एक्चुअली ये जब थे अपना गुरुजी टेस्ट कराने आए तो मैं भी वहीं पे थी, गुरुजी डॉक्टर साहब दे नाल गई हॉस्पिटल, और हाँ जी। गुरुजी का फोन आया कि मेरा टेस्ट करवा दे। गुरुजी कहते ठीक है, और इन्होंने अपने ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੈ ਗਏ तो गुरु जी कहते जा डॉक्टर देख के आ की कहते ने हो। और ये गए, फिर आए, फिर गए, तो जब गए तो बड़ा परेशान, कहता सर मैं इतने टेस्ट रोज करदा, हजारां च हुंदे ने, बट जिन्हां दा टेस्ट कीता है ये इस धरती दे नहीं है। और हम्म। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, तो फिर गुरु जी आपे आ गए ऊपर। तो जिसले वो बोल रहा था गुरु जी डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, तो गुरु जी दूरों स्माइल देके कहते की तेरा रैंक है। कहना जी मैं लाइस नाइक है, जो भी था उसका रैंक। कहते चा तेनू नेक्स्ट रैंक दिता, तेनू ब्लैस किया। और उस तो बाद फिर एक दिन फिर गुरु जी का फोन आया कि मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है, तद भी मैं नाल गई इन्हां दे। गुरु जी तो मैं दर्शन, सानू तो यही हुंदा सी, लालच हुंदा सी मेरा कि मैं भी जाके गुरु जी दे दर्शन हो जाएंगे। और मैं गई तो गुरु जी कहते कि मैं टेस्ट करा रहे हैं। और जिसलिए उन्होंने इन्हां दा एब्डोमेन टेस्ट किया, स्कैनिंग की थी, कहते सब कुछ ठीक है। गुरु जी हाँ जी। कहते किन बेटे, कहते जी एक है। कहते चल एक होर तैनू ब्लैस किया। कहते हाँ। नहीं जी होर नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने उन्होंने इशारे नाल किया कि भी तू बोल मत, महापुरुष है तो ऐसा जवाब नहीं देना। वो चुप हो गया। उस तो बाद कहते जा क्या रैंक है तेरा। कहता जी मैं मेजर है। कहते चल तेनू मेजर जनरल बनाया। हम्म। और गुरु जी ने ऐसा उन्होंने ब्लेस किया। और जिसले अपना वापिस गए तो वो कहता सर, कहते तू उनसे गुरु जी से कह रहा था कि गुरु जी ने जो बोला है वो अपना, उनकी जो वचन होते हैं बिल्कुल सही ही होते हैं, और उनसे बहस नहीं करते महापुरुषों से। कहता सॉरी सर, मैंने ऐसे जवाब दे दिया। फिर 2004 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ तो तद इन्होंने पूछा, कहते कितने बेटे। कहता जी 2। कहते उस टाइम पे तो कहता सर मैंने इसलिए क्या, क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर्स में बहुत अब्रॉड था कि मैं टेस्ट कराया से, तो उन्होंने कहा सी शी कैन नॉट बी ब्लेस्ड। कहते ले देख ले फिर। कहते नहीं ये तो गुरु जी की बहुत कृपा हुई है। और उस टाइम तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीगा। गुरु जी कहते चल फिर हूं तू मेजर जनरल भी बन जाएगा। हाँ, तो उसको हो गया। बिल्कुल सेम मुझे भी याद आ रहा है एक सत्संग, हाँ जी जैसे गुरु जी का ये टेस्ट वगैरह हुआ और इतना कम उनका हेमोग्लोबिन और ये सब निकला, जो हाँ भी जी हाँ टेस्ट जी हुए हाँ जी तो हाँ जी जैसे हाँ तो जी एक बार गुरु जी जो है वो यहाँ का सीताराम हॉस्पिटल है, वहां पे अचानक ही हाँ कहने जी लगे उधर उधर चले गए और वहां पे एडमिट हो गए। कहने लगे मैंने हाँ एडमिट कर दो और मेरे सारे टेस्ट करवाओ। ये काफी बात की बात है, जब सुल्तानपुर में आ गए थे गुरु जी, काफी लेट बात। सीताराम भारती में मेरे ख्याल है ना। सीताराम भारती में, सीताराम हाँ भारती। सीताराम। और बहुत ज्यादा संगत को पता भी नहीं था, अचानक ही बस गुरु हम्म जी चले गए। वहां कृपा हुई हम लोग के ऊपर भी कि बस वो, मैं भी दिन भर की ड्यूटी करती थी और रात को ज्यादा से ज्यादा ऐसे जोशी अंकल भी रहते थे उधर ही, और हाँ जी हाँ आते जी जाते रहते थे, सुधा आंटी विप्पी वगैरह सब लोग, आना जाना भी होता रहता था जिसको भी गुरु जी की हुक्म होता था। तो वहां पे भी गुरुजी के सारे टेस्ट हुए, यही सब करे। वो तो गुरुजी ने वहां का कल्याण करना था, जैसे कि सभी को पता होता है, हाँ जी उनको हाँ क्या जी होता है, कुछ भी नहीं। तो हाँ जी यही इतना ही कम निकला और वहां के लोग सब हैरान कि इतने कम जो ये सारे मापदंड हो रहे हैं, उसमें तो कोई आदमी सरवाइव ही नहीं कर सकता इस धरती पे। तो हाँ ये तो जी हाँ यहाँ की है ही नहीं जी।
तो सारे हाँ। आश्चर्य करते थे, और गुरुजी जैसे आप बोल रहे कि चुपचाप खड़े होके मुस्कुराते रहते थे, और गुरुजी तो अपनी लीला दिखाते थे, सबको कल्याण करने के लिए वहां पे एडमिट हुए थे। तो हाँ जी। वो वाकया मुझे याद आ रहा था, तो हाँ मैं जी। सोचा हाँ। बताओ। हाँ चलिए, जी। आप आगे बढ़िए। Adamant cancer wilts. In May of 2002, Dr. Saini was diagnosed with a severe type of cancer, non-Hodgkin lymphoma, NHL, known for its resistance to treatment. The cancer attacks the endocrine endocrine system. The doctor received treatment for 9 months. He did not feel the side effects of chemotherapy and a patient of NHL. His quick response to the treatment surprised even doctors. Even, Eventually, Guruji's blessings were secretly at work. Within a year, the disease went into remission. But in 2004, 3 lymph nodes in his right groin swelled up again. A PET scan showed cancer cells. The glands were operated upon and taken out. The doctor was then advised to go for a bone marrow exam. He prayed to Guruji, and the merciful master gave him the date for the examination. The doctor feared that if the results came positive, he would have to undergo chemotherapy again for 5 months. However, thanks to Guruji blessings and the doctor's huge relief, the test was negative. हाँ जी। And ये मेरे हस्बैंड लखनऊ पोस्टेड हुए, तो वहां जाते ही उससे कलकत्ता से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, बैक में पेन स्टार्ट हो गई थी, बट इन द मीन टाइम इनकी प्रमोशन होके तो इनको लखनऊ आ गए, और इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया वो बड़ा ऐसा ही था, जिसमें कि काफी पहले जो 2 ब्रिगेडियर्स थे वो सैक हुए थे, और इन्हें गुरुजी के कोल गए, कहते गुरुजी मेरी स्पैशलिटी ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ, तो कहते गुरु जी मैं तो नहीं है करना, तो गुरु जी हंस पे, तो कहते कोई नहीं तू जा, तो चले गए हम लोग लखनऊ चले गए, और इन्होंने जाके अपने ऑफिस से सब तो पहले गुरु जी की फोटो रखी, गुरु जी तुसी संभाल लो, मैं नहीं करना है काम, क्योंकि काफी गपले वाला काम सीगा, और ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਹਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ दैट ਪੀਰੀਅਡ ਓਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਾਫੀ हुआ, और बिल्कुल ठीक नहीं हुए, और पेन ज्यादा हो गई, और फिर उन्होंने डायग्नोस किया कि नहीं ये तो NHL है, और गुरुजी ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ है ना आ गए, RR हॉस्पिटल उन्होंने उतो भेज दिता, और मैं भी आ गई उत्थे, हार्डली फिर लखनऊ रहे, और आके 9 months आई थिंक ही स्टेड इन RR हॉस्पिटल, और गुरु जी की किरपा, रोज गुरु जी कुछ ना कुछ कदी प्रसाद भेजते सी, कदी आहूजा आंटी दे थ्रू अपने फ्लावर्स अपने भेजते सी कि अरे नाल ओनू कह नहाया करे, और रात नू जिसले प्रसाद भेजना मैं और सजल असी रात नू कदी 12 ਵਜਣ 1 ਵਜਣ ਨੇ, और जिथे कि हॉस्पिटल से तुसी एंटर भी नहीं कर सकते, और सारे डोर खुले ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, मतलब जैसा सिस्टर देखती ही नहीं, पता ही नहीं लगता सी कि कौन आया कौन गया, तो इन्होंने प्रसाद देना और आ जाना वापस। ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ मैं फोटो देख के ते मैं दस देना हैगा कि की प्रॉब्लम है, और मैं दवाइयां दसदा है और प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अच्छा। और मनु कहंदे कि तू जा, मैं क्या कि देखो मैं तो जाना नहीं जी, मैं तो गुरु जी की आज्ञा तो बिना मैं जा नहीं, कहंदे नहीं गुरु जी नु पूछ के तो तू जा, और ऑफ डेज विच कई बारी गुरु जी बुला लेंदे सी मनु और सजल नु भी, ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਆਂਦਾ ਫੋਨ ਅਰੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। तो गुरु जी ने मैनू अपनी फोटो तो कहते है तेरे को फोटो। मैं क्या हाँ गुरु जी मेरे को फोटो है। कहते तेरे को इन्ने पैसे लेगा वो तो जा फिर तू। मैंने कहा गुरु जी सजल लेके नहीं जाता। तो सजल साथ में गुरु जी कहते सजल जा आंटी मम्मी नू लेके जा उत्थे कुमार स्वामी दे। तो ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ स्वामी जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਵਾ ਲਿਆ। तो वो कहते अच्छा ये प्रॉब्लम है। मतलब इस तरीके ना कोई समझ नहीं किस तरह गल्लां च उन्होंने मेरे मुंह निकलवा लिया। और फिर अजी ये दवाई ये लिखो पूरा पेज भर देता। मैं क्या मैं फिर बोली मैं क्या इन्नियां दवाइयां तुसी लिख देती हैं मैं तो नहीं देनी है ये तो मेरे गुरु जी ने ही ठीक कर देना उदा ही ठीक कर देना। कहते केड़े तुहाडे गुरु जी। मैं क्या जलंधर वाले गुरु जी। कहते लै फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता वो तो गुरु जी ने सब कुछ कर देना। जिसले मैं आई तो गुरु जी मैनूं कहंदे फिर की कहंदा मेरी फोटो देख के। मैं क्या गुरु जी ना तुहाडी फोटो देखी ना डॉक्टर साहब दी देखी और वो कहंदा कि गुरु जी ने ठीक कर देना। और उस तो पहले मैं एक दिन गुरु जी ने कहा मैं गुरु जी मैं कदी डॉक्टर साहब नूं कदी देखिया नहीं कोई गलत काम करदे बल्कि दुनिया दी लोकां दी पेशेंट दी सेवा करदे आए फिर इन्हां नूं ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। कहंदे इन्हां दे पिछले कर्मां दा। तो मैं क्या गुरु जी अगर पिछले कर्मां दे ते कहंदे मैं क्या फिर गुरु जी कैरी फॉरवर्ड क्यों हुंदा नाल दे नाल ही खत्म कर देना चाहिए। कहंदे नहीं ऐदां नहीं हुंदा ये ते विधि दा विधान है। तो कहंदे ठीक करन नूं इहनूं मैं 5 मिनट च ठीक कर दें पर इहनूं मैं करना नहीं है क्योंकि अगर इहनूं मैं ठीक करांगा मैं अपने उत्ते लवांगा ते अगले जन्म च फिर तो ये तकलीफ लैनी पैंदी है। मैं गुरु जी दे चरण स्पर्श कीते थैंक्स कीता गुरु जी नूं और कहंदे जा फिर ओनू जदों मैं मिल के आए तो गुरु जी कहंदे जा ओनू जाके लेके आ कुमार स्वामी। मैं अपने मन च के गुरु जी मैं कित्थों लियावांगी मैं तो कहंदे बंदे शक्ल देख के कहंदे छड़ परा तेरे तो नहीं हुंदा ओ मटका लेके आएगी मटकन आंटी। और सच्ची मटकन आंटी शाम नूं ले आई ओनू क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ मटकन आंटी गई और शाम ਨੂੰ ਆ ਗਈ। और गुरु जी मेरे वाल देख के मन कहते देख ले इशारे जिस तरह गुरु जी करते होंगे सी वही स्माइल दे के कहते लै आ गया ना। फिर उस तो बाद फिर उन्हें आना शुरू करता गुरु जी ने ओदा भी इन्ना कल्याण किया इतना कल्याण। एक दिन कहंदे मेरा खैड़ा ही नहीं छड़दा पिया ਚੱਲਿਆ ही रहिंदा है। फिर एक दिन लोहड़ी सी लोहड़ी वाले दिन ओदे मैं कहा तुसी भी होवोगे उत्थे सीगे गली विच बैठ के गुरु जी ने अपनी चेयर लगवाई और उत्थे सानू अपना पूरा लंगर खाया सी और उन्हीं तो दूरों ही आ रहा सी तो मैनू कहंदे लै आ गया फिर और उन्हें आके पूरा दंड उस दिन जिस दिन पहली बार भी मिला दंडवत प्रणाम किया उस दिन भी आके गुरु जी कहंदे जा हुण तेरा कल्याण कर दिता है हो गया बस जा। तो उस दिन भी गुरु जी कहंदे मेरा खैड़ा ही नहीं छड़दा पिया मेरे पीछे पिया दा रहिंदा। सो गुरु जी दी मेहर है गुरु जी बहुत कल्याण करते ने ये हमारे सब कुछ है मतलब वर्ड्स भी नहीं है कहने दे कि सचमुच। नेक्स्ट है Satguru extends life of Doctor's mother. Dr. Sani's mother was suffering. She had a carcinoma in her breast, heart disease, and rheumatoid arthritis. By the end of 2000, she was in poor condition. She suddenly collapsed one day and had to be taken to a private hospital. She was in shock. Her heart had stopped and her blood pressure and pulse were barely recordable. While events were unfolding thus a home, Dr. Sani's niece was at Jalandhar temple. She was weeping silently since she knew her grandmother's life was fading. The omniscient Guru
सॉरी वर्ड मैं गलत बोल रही हूँ शायद. Omniscient Guru, however, forestalled the grandmother's demise, telling the niece that her grandmother's life had been extended by 5 years. Even as Guruji spoke in the hospital, Dr. Saini's mother showed remarkable sign of recovery, and she lived for 5 more years. The Guru's kirpa or grace is extraordinary. It is like God in his mother, except her heart weeps for the misery her children go through, and though they may be good or bad, they may be her devotees or they may be atheists neck deep in materialism, her Shakti, her divine power rushes to their aid. हाँ जी, ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का है. हाँ जी. और हम लोग उस टाइम पे आई थिंक वी वर इन दिल्ली में थे या कहीं और थे. वो एकदम आते कॉल आती है कि मदर की तबीयत काफी खराब है, और मेरे हस्बैंड चले गए. और जब वापस गए तो उस टाइम पे शी वाज क्वाइट इन बैड शेप, और बीच में बिल्कुल ठीक भी हो गए. तो लेकिन फिर से दोबारा उनको हुआ, तो तभी मेरी नीस जो गुरुजी जी काफी भगत है, वो वहां पर जाती है, मंदिर जाती है. और शी वॉज क्राइंग, तो गुरुजी कमरे च सीगे और सुदामा अंकल ने देखा तो कहते मंजरी तू क्यों रोंदी पई है. कहते नहीं, मेरी नानी बहुत बीमार है, डॉक्टर्स ने उन्होंने जवाब दे दिता है कि नहीं बच सकती. तो उन्नी देर च गुरुजी बाहर आ जाते हैं. तो गुरुजी कहते तू कितना आ गई. तो शी वॉज क्राइंग, कहते गुरुजी मेरी नानी नहीं बच रही, वो कह रहे डॉक्टर्स कह रहे कि बचेगी नहीं. गुरुजी कहते जा तेरी नानी ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ. और बात जिसले दसदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ गुरु जी आए, ਮੈਨੂੰ बहुत दुख हुआ. मैं कहा गुरु जी ਤੁਸੀਂ ऐसा क्यों करते हो, अपनी उम्र ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਕਹਿੰਦੇ मैं थोड़े देना, ਮੈਨੂੰ हुक्म ਹੁੰਦਾ तो मैं दे देना. अब हाँ ये जी. तो गुरु जी जाने, गुरु जी की पतलीला है क्या है मालूम नहीं. पर खैर वो 5 years पूरे एग्जैक्ट 5 years ही सेव्ड. हाँ जी. पूरे 5 साल बाद ਉਹਨਾਂ ਦੇ she left the body. हाँ जी. Now you can read the last paragraph. I think that one is Saved and saved delivered. again. Yeah. The Sainis were returning to Chandigarh after visiting Guruji in New Delhi. The Delhi-Chandigarh highway was then one-way road. They had left the Sangat quite late at night, and the family was dozing off in the car. Dr. Saini too suddenly fell asleep at the wheel. Their car veered off to the right, straight onto the path of a truck. His wife's hand suddenly brushed his shoulder, and the doctor woke with jerk. He reflexively turned the car to the left, and the truck passed by, missing them by inches. When they were all asleep, who had been awake, which unblinkingly eye had seen the truck, and who had willed the sleeping wife's hand to move and alert the doctor? The answer was very clear in 2004. तो एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन लेके वापस जा रहे थे, मेरे ख्याल जा रहे थे हम चंडीगढ़ वापस, तो काफी लेट हो गया हुआ था और इनकी आंखें थोड़ा नींद बंद होनी शुरू हो गई. और मैं आई वॉज अवेक, बच्चे दोनों पीछे सो रहे थे. एकदम मैं देखा कि सामने ट्रक आ रहा है और इनकी आंखें बंद हो रही हैं. तो एकदम से मैं कौन होती है, मेरे गुरुजी ने मेरे थ्रू इन्होंने एकदम मैं जग दिया. मैंने कहा उठो, सामने ट्रक आ रहा है. तो एकदम से इन्होंने अपनी व्हील नु अपना जो स्टीयरिंग की थी दूसरी साइड थे, और गुरुजी ने हम सबकी जिंदगी बचा दी. रियली गुरुजी दा बहुत हर चीज ਲਈ गुरुजी दा हर पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना. अभी नेक्स्ट है. The answer was very clear in 2004. Guruji had told Sajal, Dr. Saini's dentist, who was posted at Sona, to take furlough from his medical duties. At that time, Sajal
used to travel to the bus stop on his scooter and then take the bus to Sona. It was the month of August and the road was wet. Sajal was coming on his scooter to home when he swore to avoid a reversing vehicle. Only collided with another. He fell off the scooter. The Sainis, meanwhile, were with Guruji and he suddenly asked them where their son was. They told him he must be coming home from office. Just then the Sainis' phone rang and Sajal's wife told them of the accident. They immediately went home, but Sajal had been saved. He had been carried from the accident spot to home by helpful onlookers, in itself a rarity in Delhi, and he had nothing worse than a few stitches on his nose. From the hospital, he directly went to Guruji in thanksgiving for saving him. Sajal now says that his birthday should henceforth be celebrated on the day Guruji saved him, for he had been granted new life. ये 2004 की बात है. हाँ हाँ जी. जी 2000 ਗੁਰੂਜੀ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ. ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ. ਗੁਰੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਫੜ ਲੋ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ. तो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਜੀ ਫੜ ਲੋ ਮੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੋ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਬੋਲੋ. ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀਗੇ. तो ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਜਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨਾ ਗਿਆ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. तो गुरु जी ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਸ਼ਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾ ਸਜਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. तो ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ. तो ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸ਼ਮੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਜਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਮਨੂ ਔਰ ਸਜਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਣੀ. तो गुरु जी डॉक्टर साहब ने कहते डॉक्टर साहब जाओ तुसी फटाफट जाओ. तो मेरे हस्बैंड जाते और जिन्हों ने वो एक्सीडेंट देखा है एरा हेलमेट निकल के किते दूर गिरया और एरा स्कूटर बिल्कुल पिचक गया और एक थ्रो होके तो काफी दूर जाके गिरा है. और जिन्होंने देखा है एक्सीडेंट देखे बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही सी तो कुछ लोग बालकनी च खड़े सी रेजिडेंस एरियाज विचों आ रहे थे. वो कहते मिराकल हुआ है कि ये बच्चा बच गया है. नहीं तो जिस तरीके ना एक्सीडेंट हुआ है पता नहीं क्या होना था. और जिसले डॉक्टर साहब गए तो गुरु जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब सजल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਤੇ ਸਟਿਚੀ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਸੂਜ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ सब सुफिशियल ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਉਸ ਕਰਾਏ. एवरीथिंग वाज फाइन. और जिसले गुरु जी को लाए तो मुंह मेरा सुजया था. ते गुरु जी कहते फिर सजल की हो गया जा न्यू लाइफ दी थानू. तो फिर कहते सेवादार नू कहते चलो एनू चाय प्रसाद दो. फिर उन्हें बिठाया काफी देर बिठा के गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया और फिर कहते जाओ इनू कर लो जाओ. बस वो दिन तो सजल कहता कि मेरी न्यू लाइफ गुरु जी ने दी है और मेरा बर्थडे जरा तुसी 25 of अगस्त अगस्त. तो बस गुरु जी दी बहुत मेहर है. बहुत ही कृपा है. बहुत ही कुछ किया गुरु जी ने. मतलब कि होर कुछ नहीं चाहिए हुण ते बस गुरु जी दा प्यार जिस तरह मिलता रहे वही मिलता रहे. गुरु जी अपने नाल रखन अपने चरनां च रखन.
अगर कोई गलती होगी हो कुछ गलत तो माफी मांगती हूँ इतना गुरुजी से सुंदर, भी, आप इतनी सब अच्छे से से, भी। बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर तरीके से आप बताते हो सुनीता, तो why are you hesitating? Why? No, never. हाँ, So अच्छे से आपने गुरु जी के बारे, और मैं तो ये कहना चाह रही थी लास्ट में कि ब्रिगेडियर सैनी जैसा बंदे, जैसे कितने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल, इतने अ, इतने गुरु जी के प्यारे, ऐसे बंदे सचमुच में बहुत कम लोग होते हैं। हम लोग को बहुत उनके साथ बहुत नजदीक से रहने का मौका मिला, और गुरु जी के इतने ज्यादा भगत, और इतना उनको कहना मानते थे वो, और हुक्म था उनको कि कोई, उन्होंने फोन नहीं रखना, उन्होंने हाँ, मोबाइल नहीं, फोन नहीं यूज करना, तो कभी उन्होंने नहीं। बिल्कुल कभी छुआ तक नहीं फोन, कभी मोबाइल फोन अपने हाथ में नहीं लिया उन्होंने। कभी कॉल आ जाती थी, कोई अर्जेंट बात है, तो सुनीता से कहते थे कि वो अपना स्पीकर ऑन कर दे और उसमें बोल देंगे, लेकिन अपने हाथ में कभी नहीं लेते थे। सिर्फ हाँ घर में वो अपना लैंडलाइन फोन यूज करते थे, और हाँ जी, अदरवाइज उन्होंने बिल्कुल लास्ट तक गुरु जी का हुक्म माना। ऐसे डिवोटी होना भी एक अपने में एक सचमुच में पूर्ण समर्पण था उनका गुरु जी के प्रति, वो सीखने लायक बात थी। और बहुत बहुत उनको, उनकी याद हम लोग तो हर समय, हम लोग काफी गुरु जी ने सचमुच में, ये कुछ ऐसे जन्मों के साथ होते हैं जो हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन जी, इन चीजों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अंतर, हमारी आत्माएं पहले कभी एक साथ होंगी, अब भी गुरु बिल्कुल जी ने बिल्कुल। सबको साथ रखा हुआ है। बहुत बहुत कृपा गुरु जी की, सबके ऊपर पर इसी तरह गुरु जी अपनी पर कृपा गुरु जी दी बरसाते रहे। बहुत कृपा है कि जिस तरह दी उन्होंने प्रॉब्लम सी गुरु जी ने फिर भी उन्होंने 19 साल दिते, मन हाँ जी, 18 साल दिते, हाँ 2019 ਚ ਹੀ ਲੈਫਟ। तो हाँ उसके जी, लिए भी गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि चलो इतने विदाउट एनी लाए। प्रॉब्लम, हाँ जी, विदाउट एनी मतलब हाँ, बिस्तर में ਉਸ नहीं ਤੋਂ पड़ना, ਬਾਅਦ कुछ ਕਦੀ, नहीं, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चलते ਕਦੀ फिरते। ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं उन्होंने ही अंदरों से होएगा ही, कमजोर तो होंगे गए दिन ब दिन, बट अदरवाइज गुरु जी के साथ तो उनका ऐसा रहा। और उन्होंने बॉडी भी है, और उनका जब हुआ भी, व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, और आर्मी वालों ने भी आके उनका पूरा रिगार्ड हाँ दिया, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा। और हाँ वहां पर उनको पूरा ऑनर दिया, कमांड के हॉस्पिटल से भी और कमांड से भी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी है, सब दो जगह से आके उन्होंने उनको ऑनर दिया। सो सब गुरु जी की सब गुरु कृपा जी, से ही है सब, बिल्कुल सब बिल्कुल। गुरु हाँ जी। हाँ, जी, हाँ। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतने सुंदर थैंक सत्संग यू। की, इतनी सुंदर रीडिंग, और आप हम सबका सभी के, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ गुरु जी, जी का और बहुत मुझे बहुत भी शुक्राना। श्री शासन अंकल ये मौका देते हैं, उसके लिए बहुत हाँ, बहुत उनके धन्यवाद। लिए, हाँ। हाँ आज जी, अंकल तो, थैंक यू सो अंकल की आवाज मच। नहीं आई आज, प्रेजेंट नहीं है अंकल। अंकल इस समय नहीं है मैं, वो कमरे में है, मैं इधर पूजा रूम में गुरु जी के नहीं, पास बैठी। हाँ, हाँ, हाँ जी, वासन अंकल, अदरवाइज हाँ, हाँ, आज वास, वो लेट असल में वॉक करके लेट आए, तो अच्छा फिर अच्छा इसलिए अच्छा। शाम से हुए। हाँ चलो जी, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू गुरु जी सो का मच तो, फॉर लिसनिंग, एंड सुनीता का और सुरेश अंकल का और गुरु जी का तो सबसे पहले गुरु धन्यवाद। जी का तो सबसे पहले, थैंक गुरु जी यू, का तो थैंक यू सो मच। शुक्राना ही शुक्राना, हर पल हर श्वास बात, उनका शुक्राना है। हाँ जी, हाँ जी, तो ओके, हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। ठीक ओवर है टू यू ठीक है, वासना का, ओवर टू थैंक यू, यू। जो आंटी कर रही हैं, आई डोंट नो द नेम, सॉरी, ओवर टू यू। Jai Guruji, Shukrana Guru Maharaj for today's reading session from your divine book, Light of Divinity. Thank you, Saini Aunty, Saini, thank you, Leela Joshi Aunty, आज की सेशंस के लिए। एंड हम आज्ञा लेते गुरु जी से। जय गुरु जी।